Hello students, welcomes to mechanics tutorial. Today we are going to solve the numericals on equilibrium, okay, and Lami's theorem. ये जो भी टॉपिक है मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आपको पूछा ही जाता है फॉर 6 मार्क्स न्यूमेरिकल. ओके, सो कम्स टू द पॉइंट. ओके, equilibrium. What is meant by equilibrium? When body it satisfies the three conditions, summation of f of x is equal to 0, f of y equal to 0 and moment at any point equal to 0. अगर ये कंडीशन तीनों की तीनों कंडीशन any body satisfies, that means that body is in equilibrium. Okay, that is in stable equilibrium. So here Lami's theorem. So what is Lami's theorem? If body is in equilibrium under three forces, under the action of three forces, okay, it is in equilibrium under the action of three forces, then we can apply the Lami's theorem. Okay, each force is proportional to the sine of angle between other two forces. Okay, so that is the statement of Lami's theorem. Now here let's say कि three forces, body is in equilibrium under three forces, P1, P2, P3 are the three forces and the corresponding angles between them are given like that, alpha, beta and gamma. Okay, then according to this statement P1 upon, okay, ये P1 है, P1 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू. ओके, रिमेनिंग टू के बीच का एंगल, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ. रिमेनिंग क्या है, P2 एंड P3, उनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा. ओके, सो साइन अल्फा. सिमिलरली P2. ओके, इफ आई हाइड दी P2, अगर इसको मैं हाइड कर रहा हूँ तो बचा क्या, बीटा, साइन बीटा. सिमिलरली P3. ओके, हाइड P3, रिमेनिंग दो के बीच का एंगल क्या है, गैमा, तो साइन गैमा. सो दिस इज योर व्हाट, Lami's theorem, and this theorem you can apply only when body is in equilibrium under three forces, under the action of three forces. Okay, and most important thing कि ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब all three forces are outward. अगर इसमें से एक भी फोर्स इनवर्ड रहेगा तो ये इक्वेशंस आपको गलत आंसर देगा, या इट इज दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल व्हेन सिचुएशन इज लाइक दिस. तो आपको यही ध्यान में रखना है कि व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर थ्री फोर्सेस और व्हेन यू आर अप्लाइंग द Lami's थ्योरम, तब वो तीनों की तीनों फोर्सेस आउटवर्ड होनी चाहिए, नो इनवर्ड फोर्स. ओके, इनवर्ड फोर्स के लिए अलग इक्वेशंस आता है, एंगल्स थोड़ा चेंज होके. बट अगर ये वाला इक्वेशन में अप्लाई कर रहा हूँ तो इन दैट केस ऑल थ्री फोर्सेस मस्ट बी आउटवर्ड. ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द Lami's थ्योरम. This numerical can be solved by using the general equilibrium equations also. Okay, so let's see the numerical. A sphere of weight 100 Newton is loaded as shown in figure. Determine the tension in the string and reactions are of the wall. Okay, ये sphere है of weight 100 Newton, उसका weight 100 Newton दिया है. तो first you have to draw a free body diagram. Okay, step number 1 is draw free body diagram. What is free body diagram? A diagram free from the contacting surfaces. A diagram free from the contacting surfaces, or which consist of only forces and reactions. Okay, तो here how many forces are acting? Okay, कितने forces act हो सकते हैं यहाँ पर, ऑब्जर्व करो केयरफुली. तो फर्स्ट जो रहेगा, फ्रॉम हियर योर वेट ऑफ स्पीयर इज गोइंग टू एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. देन ये जो स्ट्रिंग है या रोप है, उसमें क्या आएगा, टेंशन. ओके, द फ्लेक्सिबल एलिमेंट्स आर ऑलवेज अंडर टेंशन. ओके, जितने भी इलास्टिक्स मेंबर है या फ्लेक्सिबल है वो टेंशन ही आता है, उसमें कॉम्प्रेशन नहीं आता. सो यहाँ पर यह आएगा टेंशन. एंड हियर व्हेन एवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट देयर विल बी द रिएक्शंस. नॉर्मल रिएक्शंस वहाँ पर आती ही है. ओके, तो ये स्पीयर है, इट इज रेस्ट ऑन द वॉल, सो दिस वॉल विल गिव यू द नॉर्मल रिएक्शंस लाइक दिस. ओके, this is your what, normal reactions or R. That means this body consists of three forces. Okay, so we will draw the free body diagram. Okay, तो let's say कि ये आपका sphere था. Okay, and from that sphere कितने forces आ रहे थे, from this is the center, from here this is your what, W, that is 100 Newton. Then the reactions. Okay, हमें पता है if I am applying the Lami's theorem then your forces must be outward. forces क्या आनी चाहिए, outward. Okay, and this is the tension in the rope. Okay, तो यहाँ पर अगर हम एक्सिस लाइन्स या ड्रॉ करते, ओके, ये इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड होगा. ओके, along the line of action force can be transfer, हमें पता है, दैट इज लॉ ऑफ ट्रांसमिबिलिटी. अगर ये एंगल आपका 15 डिग्री है, मतलब
ये वाला भी एंगल क्या रहेगा आपका 15 डिग्री. सो आई विल टेक दिस एंगल इज 15 डिग्री. ये एंगल मेरा वो 15 डिग्री. ओके, यहाँ से अपोजिट साइड एंगल. नाउ इन लैमिस थ्योरम यू हैव टू फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू फोर्सेस. तो ये जो भी है यहाँ पर एंगल क्या आने वाला है आपका परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल आएगा आपका 90 डिग्री. ये टोटल एंगल कितना रहेगा, दिस 90 प्लस 75, 90 प्लस 75, दैट मीन्स दिस एंगल टोटल एंगल. ओके, ये 90 है, ये 75 है, क्योंकि टोटल इज 90, तो दैट बिकम्स 165. वो क्या आएगा आपका 165. एंड दिस इज 90 प्लस 15, सो दिस विल अगेन 105 डिग्री. ओके, राइट है. सो यहाँ पर आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कि वेदर एडिशन ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360 आनी ही चाहिए, बिकॉज इट कंप्लीट्स वन सर्कल, एंड सर्कल के लिए एंगल कितना रहता है 360, आपको पता है. तो वो एक क्रॉस चेक पॉइंट रहेगा हमारा 165 प्लस 105, दैट इज 270, 270 प्लस 90, दैट इज 360. एंगल्स आर करेक्ट, दैट मीन्स यू कैन अप्लाई लैमिस थ्योरम. ओके, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लैमिस थ्योरम क्या था, फोर्स अपॉन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू. सपोज मैं 100 ले रहा हूँ यहाँ पर. ओके, आई विल टेक फर्स्ट इज ओके, step 2 is apply Lami's theorem. Step 2 is your what? Second step is apply Lami's theorem और rule. ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 100 अपॉन साइन ऑफ एंगल, 100 अपॉन साइन ऑफ एंगल इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 105 इक्वल टू, अब आर. ओके, हाइड आर. अगर मैं आर ले रहा हूँ तो उसको मैं हाइड करूँगा, हाइड आर, बचा क्या टी एंड डब्ल्यू, उसके बीच का एंगल कितना है 165. सो साइन ऑफ 165 इक्वल टू टी. ओके, टेंशन इज टी अपॉन साइन ऑफ एंगल, हाइड टी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90. ओके, so in this way you can apply the Lami's theorem. Now we want to value of r, so compare first two equations. Okay, so r is equal to 100 divided by sin 105 into sin 165. ओके, तो यहाँ से उसका आंसर क्या आ रहा है आपका 100 इंटू साइन into sin 165, so 26.79. okay, so value of reaction is your what, ये आ रहा है आपका 26.79 न्यूटन. ओके, कितनी वैल्यू आ रही है उसकी 26.79 न्यूटन, राइट. एंड व्हाट इज टी इज इक्वल टू, अगेन फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन यू हैव टू कंपेयर sin 105 ओके into sin 90 इज 1, sin 91 है, तो 103 पॉइंट, ये क्या आ रहा है आपका 103.52 न्यूटन. ओके, इन हार्डली 3 to 4 steps you will get the answer of this one. Okay, now here you can solve the same equation by the general force system. Okay, resolution of force system. So here I will go with that also. आपको एक सिंपली मैं सॉल्व करके दिखा दो. नाउ ओनली दिस टी इज योर इंक्लाइन मेंबर, टी आपका इंक्लाइन मेंबर है, तो इसको मैं रिजॉल्व करूँगा. सो दिस कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट आएगा क्या आएगा मेरा टी कॉस 15, ये कंपोनेंट आएगा आपका टी साइन 15. ओके, इसको मैंने रिजॉल्व किया, बाकी दो तो है ही ऑलरेडी. तो यहाँ पर मैं समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्लाई करता हूँ. समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. ओके, तो हियर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या रही वैल्यू आपको, आर राइट साइड जा रहा है तो पॉजिटिव, टी साइन 15 इज मूविंग लेफ्ट साइड, तो वो निगेटिव आएगा, इक्वल टू 0. ओके, so here sin 15
sin 15 is 0.2588. R is equal to 0.2588 t. So this will be what your equation 1. Now you have to apply the second equation. Okay, second equation, that is summation of f of y equal to 0. तो अभी आपको चेक करना है कि एफ ऑफ वाई क्या है. वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड निगेटिव है. सो टी cos 15 is moving upward, so positive. Okay, minus w is downward, so 100 equal to 0. So t is equal to what? T is equal to 100 divided by cos 15. 100 divided by cos 15. Okay, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है 100 डिवाइड बाय cos 15 103.52 न्यूटन. पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1. ये वाली वैल्यू जो आपको इक्वेशन 1 में आपको ऐड करनी है, तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू मिलेगी 26.789 न्यूटन. Okay, that means you can solve the numerical by Lami's or by general force system. Okay, condition of equilibrium, right? So this Lami's will give you the answer in 3 to 4 steps. वो easy है, simple है. So better way, अगर body is in equilibrium under 3 forces, you can use Lami's. Okay, thank you.